ہم نے بہر صورت کورونا سے بچانا ہے تو اس میں پھر اتنی ذمہ داری عوام کی بھی بنتی ہے کہ وہ بھی اپنا خیال رکھیں، احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ عید کے بعد جو مارکیٹ بند ہوئی ہے یا اب تھوڑے شاپس کھلنا شروع ہو گئے ہیں، تھوڑا جو ہم نے آبزرو کیا ہے کہ ہمارے جو شاپ کیپرز ہیں وہ ایس او پیز آبزرو کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ہمارے عوام جو ہے بہت بڑی تعداد تو میں نہیں کہوں گا، بہرحال قدرے ایک بہتری نظر آ رہی ہے ان ٹرمز آف آبزرونگ دی ایس او پیز۔ ہمارے ڈاکٹرز، ہمارے پیرامیڈکس وہ 24/7 کورونا کی جو پیشنٹس ہیں ان کو سرو کر رہے ہیں، ان کی خدمت کر رہے ہیں۔ ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں اپنے ڈاکٹر صاحبان کو، اپنے پیرامیڈکس کو، اور سیکورٹی کے وہ ادارے، ہمارے پولیس، سیکورٹی گارڈز اور وہ سرکاری ملازم یا وہ پرائیویٹ آرگنائزیشن کے لوگ جو سرو کر رہے ہیں۔ بلوچستان گورنمنٹ نے ہمارے ڈاکٹرز، ہمارے پیرامیڈکس کو سرو کرنے کے لیے روز اول سے ہر ایک سہولت پہنچانے کی ہم نے کوشش کی ہے، جن میں پی پی ایز ہیں، ماسکس ہیں، گاگلز ہیں، کیپ کورز ہیں، شو کورز ہیں، جو بھی ریکوائرڈ ڈاکٹر صاحبان کو کورونا کمبیٹ کرنے کے لیے اکوپمنٹ ضرورت ہے وہ ہم فراہم کرتے رہے، اور وافر مقدار میں ہم نے فراہم کی ہے، اور الحمدللہ ہمارے پاس یہ سارا اسٹاک اس وقت وافر مقدار میں موجود ہے۔ لیکن کل بلوچستان گورنمنٹ ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہمارے وہ ڈاکٹر صاحبان، پیرامیڈکس، سرکاری ملازمین جو کورونا کے پیشنٹس کو ڈیل کرتے ہوئے کورونا انفیکشن سے متاثر ہوئے ہیں، اور متاثر ہونے کے ساتھ جو شہید ہوئے ہیں ان کو شہداء ڈکلیئر کرتے ہوئے، جو بلوچستان میں دیگر سرکاری ملازم جو ڈیوٹی کے دوران شہید ہوتے ہیں، جو شہداء پیکج ہے وہ ان کے لوائقین کو دینے کا جو ہے فیصلہ کیا گیا ہے، اور وہ ایک پورا پیکج ہے، اس کی نوٹیفیکیشن پہلے سے کی جا چکی ہے، جو گریڈ وائز ہے۔ مختلف گریڈ کے شہداء کے لیے مختلف اس میں کمپنسیشن جو ہے وہ ایک رقم ہم ادا کرتے ہیں، گو کہ اس رقم سے جو تلافی نقصان ہمیں ہوا ہے وہ پورا نہیں ہو سکتا، لیکن بلوچستان گورنمنٹ جو ہے نا ہم ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان کے فیملیز کے ساتھ جو ہے کنٹریبیوٹ کریں۔ اس کے علاوہ دیگر جو ڈاکٹرز، پیرامیڈکس جو کورونا کو کمبیٹ کرنے کے لیے ہاسپٹلز میں ڈیوٹی دے رہے ہیں، فاطمہ جناح چیسٹ ہاسپٹل اور شیخ زید میں، ان کے لیے بھی جو ہے اضافی بونسز کا اعلان کیا گیا ہے، جو 1 مارچ سے ہمارے ان پیرامیڈکس اور ڈاکٹر صاحبان کی جو تنخواہیں ہیں اس میں اس کا اضافہ کیا جائے گا۔ بلوچستان گورنمنٹ نے ایک اور فیصلہ کیا ہے کہ اب تک ہمارے سول سیکریٹریٹ میں ایک آدھ شعبوں کے علاوہ سب بند تھے، ہوم ڈپارٹمنٹ کو ہم نے کھولنے کی اجازت دے دی تھی اس سے قبل۔ اب چونکہ بجٹ اور ڈیولپمنٹ جو سیکٹرز ہیں اس میں کام کرنا ضروری ہے، بلوچستان گورنمنٹ بجٹ کی تیاری کر رہی ہے، تو بجٹ اور ڈیولپمنٹ پی این ڈی وغیرہ سے منسلک جتنے بھی سیکریٹریٹ کے ڈپارٹمنٹس ہیں انہیں بھی کھولنے کی اجازت دے دی گئی ہے، لیکن وزٹرز جو ہے وہ الاؤ نہیں ہوں گے۔ اب تک مجھے یاد ہے جب 1000 کورونا پازیٹیو پیشنٹ سامنے آئے تھے آپ بھائیوں کے ساتھ، میں جب وہ شیئر کر رہا تھا، میرے اور آپ کے احساسات جو ہے وہ بڑے پریشان کن تھے کہ اب بلوچستان میں کیسز 1000 تک پہنچ گئے، لیکن انفارچونیٹلی آج دیکھیں کہ 4000 سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ اب 4087 کیسز آپ کے سامنے ہیں، اور ان 4087 کیسز میں صرف منتھ آف مئی میں 3038 کیسز سامنے آئے ہیں، جو بنتے ہیں کل کیسز کا 74.5%۔ اور لاک ڈاؤن جب ہم نے ریلیکس کیا، اسمارٹ لاک ڈاؤن میں اس کو کنورٹ کیا، گزشتہ 2 ہفتوں میں ان 3038 میں 1669 کیسز یہ آئے ہیں، جو بنتے ہیں کوئی 65%۔ لیکن اوورآل اگر ہم دیکھیں منتھ آف مئی میں آلموسٹ اسمارٹ لاک ڈاؤن سے قبل یا اسمارٹ لاک ڈاؤن کے دوران وہ جو شرح ہے وہ تقریباً ایک ہی رہا ہے، کوئی زیادہ اس میں فرق نہیں پڑا۔
कोई 10 से 12% जो है उसमें इजाफा है। अमवात में इजाफा जो है वो तशवीशनाक है। एवरेज हमारा 1% टोटल जो पॉजिटिव केसेस रहे हैं उनका 1% जो है जो पेशेंट्स हैं वो अल्लाह को प्यारे होते रहे, अल्लाह उनको मग़फ़िरत फरमाएं। बीच में ये 2% तक पहुंचा, वापस 1%। लेकिन अभी हमने ये 2 दिन कबल फैसला किया है कि वो पेशेंट्स या वो लोग जो जिनकी रिपोर्ट्स पॉजिटिव अभी तक नहीं आए या उन्होंने अपने रिपोर्ट्स हासिल नहीं किए या टेस्ट कंडक्ट नहीं कराया, लेकिन जो सिम्टम्स हैं वो साथ अगर किसी की शहादत होती है तो उसको भी हम अब रिपोर्ट कर रहे हैं। लिहाजा इस तरह सिर्फ कल 16 केसेस जो है अमवात के वाक़े हुए हैं बलूचिस्तान में, जिनमें 3 कन्फर्म्ड केसेस हैं जो ऑलरेडी कोरोना पॉजिटिव थे, लेकिन 13 सस्पेक्टेड कह लें या प्रोबेबल केसेस जो हमें शुबा है कि उनके जो सिम्टम्स थे वो कोरोना के थे। तो इस तरह सिर्फ कल के रोज़ जो है 16 अफराद जो है वो जाम बक हुए हैं। परसों जो है 17 सस्पेक्टेड इस तरह के अमवात वाक़े हुए हैं और 2 जो है रिपोर्टेड केसेस थे। इस महीने के शुरू में बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने यह भी फैसला किया था कि चूंकि हमने पूरे बलूचिस्तान में टेस्ट कंडक्ट नहीं किए, फिर हमने रैंडम टेस्टिंग शुरू की ताकि जो ट्रेजेक्ट्री है, जो परसेंटेज है एक्चुअल, वो हमें समझ आ सके। साथ ही ये फैसला भी किया गया था कि बलूचिस्तान में अमवात की शरह जो है वो गुज़िश्ता 1 महीने से ख़ुसूसन वो बहुत तेज़ी से उसमें इजाफा हुआ है। तो ये फैसला किया गया कि जितने भी अमवात वाक़े हो रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर साहिबान वो जो हमारा BCOC है, जो हमारा इदारा है, वो उसको रिपोर्ट करेंगे। उसके मुताबिक मई में सिर्फ बलूचिस्तान में 492 अफराद के अमवात वाक़े हुए हैं, जिनमें कोरोना भी है और कोरोना के अलावा दीगर अमराज से भी लोग जामबक हुए हैं। लेकिन ये भी वो केसेस हैं जिनके या डेथ सर्टिफिकेट इशूज़ किए गए या जो रिपोर्ट हो सके। हमें खदशा है कि केसेस इससे ज़्यादा हो सकते हैं। और कल CM साहब ने यह फैसला किया है कि मजीद एवरी इंडिविजुअल, कोई भी, या कोई बच्चा है, जवान है या बुजुर्ग, जिसका भी मौत वाक़े हो रहा है किसी भी सिम्टम की वजह से, तबई मौत या गैर तबई या किसी भी सूरत हाल में, उस सब को हम रिपोर्ट करेंगे और वक्तन फवक्तन इंशाअल्लाह मैं आपके साथ ये शेयर करता रहूँगा। इसके साथ मलेरिया और टाइफाइड भी एक राइज हमें नज़र आ रहा है और उसके तदारुक के लिए हमारा जो मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, कल के इजलास में हम उसके लिए फंड भी रिलीज़ कर रहे हैं और जो रिक्वायर्ड जो मेडिसिन है वो भी उसको बहर सूरत हम मेक श्योर कर रहे हैं। लेकिन अवाम में एक कन्फ्यूजन पाई जाती है कि किसी को अगर कोरोना की वजह से भी सिम्टम सामने आ रहे हैं, फीवर हो रहा है, लेकिन उस बुखार को भी अपने आप को मुतमईन करने के लिए उसको मलेरिया या टाइफाइड कह के नजरअंदाज कर रहे हैं। हम आवाम से गुजारिश करते हैं कि भले बुखार के साथ ही जब आप मलेरिया या टाइफाइड का टेस्ट कराने जाते हैं तो साथ ही कोरोना का भी कराएं। हम डॉक्टर साहिबान से भी गुजारिश करते हैं कि वो भी हर एक बुखार के पेशेंट जो उनके पास जाते हैं, साथ उन्हें जो सिम्पटोमेटिक बुनियादों पे कोरोना का जो टेस्ट है वो उन्हें सजेस्ट करें, ताकि अगर खुदा न ख्वास्ता कोई कोरोना से मुतासिर है तो वो हमें मालूम हो सके। बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने, मैंने पहले भी जिक्र किया कि 71 आइसोलेशन फैसिलिटी हमने इस्टेब्लिश किए हैं, जिनमें फौरी तौर पे इस वक्त 1600 पेशेंट्स को हम वेल अकोमोडेट कर सकते हैं विद ईच एंड एवरी फैसिलिटी। मजीद जो है कोई 2000 से ज्यादा आइसोलेशन फैसिलिटी हम फौरी तौर पे इस्टेब्लिश कर रहे हैं, जिनमें 960 बेडेड दश में मेडिकल कॉम्प्लेक्स और 460 बेडेड आपके स्पिनी रोड पे। सिर्फ कोयटा में 4000 बेडेड आइसोलेशन फैसिलिटी का जो है हमारा प्रोग्राम है जिस पे हम काम कर रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खुशनसीबी की बात यह है कि इन आइसोलेशन फैसिलिटी में 71 में से सिर्फ 4 आइसोलेशन फैसिलिटी, शेख ज़ैद, फातिमा जिन्ना, हमारा सिविल हॉस्पिटल में और BMC में जो फैसिलिटीज हैं,
मजमूई तौर में इनमें सिर्फ 150 पेशेंट्स इस वक्त मौजूद हैं। बाकी आपके 2200 के करीब जो पेशेंट्स हैं वो होम आइसोलेशन में हैं। वेंटिलेटर्स पे अल्हम्दुलिल्लाह कोई एक भी पेशेंट इस वक्त बलूचिस्तान में नहीं, लेकिन 26 ऐसे पेशेंट्स हैं जो कुछ क्रिटिकल हैं और उन्हें आईसीयू शिफ्ट किया गया है, उन्हें ऑक्सीजन फराहम की जा रही है, जिनमें सिर्फ 20 जो है वो शेख ज़ैद हॉस्पिटल में है। क्वारंटाइन सेंटर हमने 60 स्टैब्लिश किए, जिनमें 6500 अफराद को हम वेल अकोमोडेट कर सकते हैं विद ऑल एसओपीज एंड फैसिलिटीज। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो इस वक्त क्वारंटाइन में है पूरे बलूचिस्तान में लोगों, उनकी तादाद 1400 है, जिनमें मेनली 500 के करीब अफराद जो है वो पशीन में, 250 शोब में, 150 लसबेला में, और किला अब्दुल्ला का जो फिगर कुछ दिनों से ज्यादा आ रहा था, लेकिन आज की तारीख में किला अब्दुल्ला के क्वारंटाइन सेंटर में अब कोई एक भी सस्पेक्टेड केस मौजूद नहीं, कोई फर्द वहां पे मौजूद नहीं। इसी तरह एक और खुशनसीबी की बात है कि हमारे जो कोरोना के पेशेंट्स थे उनमें रिकवरी रेट पहले 55% थी, जो घटते घटते 13% तक नीचे आ गई थी, जिसकी वजह से हमें परेशानी का सामना था। लेकिन केसेस बढ़ने के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह जो सेहतयाब होने की शरह है मरीजों की, वो भी तेजी से आगे बढ़ रही है। अब हमारा जो एवरेज है रिकवरी रेट वो है 36%। तो इसका यह मतलब है कि जो पेशेंट्स की तादाद बढ़ रही है उसी तरह 36% जो है वो पेशेंट्स वो रिकवर हो रहे हैं, यानी 4087 पेशेंट्स में से 1400 अब तक मुकम्मल सेहतयाब हो चुके हैं। और अल्लाह तबारक ताला से हम दुआगो हैं कि अल्लाह करे ये जो सेहतयाबी का जो शरह है इसमें इजाफा हो। बच्चे जो है 1 से 10 साल के वो मजमूई तौर पे 7% मुतासिर थे, उनमें भी थोड़ी सी कमी आई है, अब वो 6.5% है। और इसी तरह जो सबसे ज्यादा जो मुतासिर थे हमारे नौजवान थे, वो लापरवाही करते थे, गैर मोहतात रहते थे। कुल जो केसेस सामने आए थे उसका 46% वो जो है हमारे पहले जो है नौजवान थे, एज ग्रुप उनका जो है जो 20 से 40 साल के हैं। अब जो है उसमें भी कुछ कमी आई है, यानी 40% तक डिक्लाइन आई है। इसका यह मतलब है कि नौजवान अब मोहतात होना शुरू हो गए। पहले हम रैंडम टेस्टिंग करते थे, लोगों के टेस्ट लेते थे, लोगों को हम बताते थे कि कोरोना है, कोरोना का खतरा है, लोग हमारी बात नहीं मानते थे, मोस्ट ऑफ द पीपल। फिर हमने रैंडम टेस्टिंग शुरू की, रैंडमली जाके लोगों से हम सैंपल्स लेते थे। लेकिन अब एक सूरत-ए-हाल में तब्दीली यह आई है कि अब कोरोना एसिम्प्टोमेटिक नहीं रहा, सिम्टम्स भी जो है वो माइल्ड नहीं रहे, बल्कि सीवियर सिम्टम्स सामने आ रहे हैं। और हमारे बहुत सारे लोग कोरोना से मुतासिर हो रहे हैं और हॉस्पिटल्स में वो अपना चेकअप भी करा रहे हैं, अपने सैंपल्स भी वो टेस्ट करा रहे हैं। और अब एक आम फहम और लोग इस बात को समझना शुरू हो गए कि गवर्नमेंट्स बिल्कुल दुरुस्त कह रहे थे कि कोरोना एक हकीकत है, ये एक वबा है, ये फैलता जा रहा है। अब लोगों ने इस सच्चाई को बाय करना शुरू किया है। लेकिन कोयटा से बाहर जो हमारे देहात हैं वहां पे लोग अब भी एसओपीज को कम फॉलो कर रहे हैं, ज्यादा इसको संजीदा नहीं ले रहे हैं। उनसे भी हम गुजारिश करते हैं कि एसओपीज को फॉलो करें, क्योंकि हमने एसओपीज फॉलो करते हुए कोरोना के साथ जीना सीखना होगा, वरना कोरोना में जीने नहीं देगा। यह बात तय है। इसलिए तय है कि अगर कोरोना से कोई मुतासिर होता है तब भी कोरोना आपको जीने नहीं देगा, आप बीमार पड़ जाएंगे। कोरोना से किसी का मौत वाक़ई होता है, जाहिर है जिंदगी खत्म होगी, कोरोना जीने नहीं देता। अगर कोरोना की वजह से स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किया जाए, सख्त लॉकडाउन किया जाए, तब भी कोरोना और भूख वो हमें जीने नहीं देंगे। ये हमने 1.5 माह स्ट्रिक्ट लॉकडाउन करके देखा। तकरीबन 2 हफ्ते से स्मार्ट लॉकडाउन का ये मरहला जारी व सारी है 2 जून तक। और कोरोना पूरी दुनिया जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि साल, 1.5 साल या 2 साल मजीद कोई इसकी वैक्सीन, कोई मेडिसिन इजीली मार्केट में अवेलेबल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा।
और अगर हम स्ट्रिक्ट लॉकडाउन का फैसला करते भी हैं तो क्या फिर 2 साल के लिए, या फिर यह फैसला करके हम स्ट्रिक्ट लॉकडाउन करें कि जब तक वैक्सीन नहीं आती, मेडिसिन नहीं आता, हम लॉकडाउन करें? अगर आवाम ये चाहते हैं कि इस तरह किया जाए, ऐसा कोई फैसला किया जाए, तो फिर ठीक है। अगर आवाम चाहती है कि ऐसा ना हो और ये स्मार्ट लॉकडाउन के साथ साथ जीना भी सीखें, एसओपीज भी अमल दरामद करें, तो फिर बाल जो है वो आवाम के कोर्ट में, फिर आवाम एसओपीज पे अमल दरामद करे। और एसओपीज मुश्किल नहीं है, कम अज कम कोयटा की सतह पे मैं ये जरूर कहूंगा, या बलूचिस्तान के वो एरियाज जहां पर खुदा न ख्वास्ता जलजले आते रहे हैं। हम सब जानते हैं कि जलजले के एक ही शौक से लोग अपने घरों से बाहर निकल आते हैं, और जब तक आफ्टर शॉक्स जारी रहते हैं लोग अपने घरों में नहीं जाते। और इसी तरह अब कोरोना का जो एक भौंचाल आया हुआ है, इसको भी आप जलजले ही से ताबीर करें, गो के इसमें आपको घरों से बाहर नहीं रहना, घरों ही में रहना है, ज्यादा वक्त आपने घरों में गुजारना है। तो एसओपीज पे आप अमल दरामद करेंगे, जब तक फिर वैक्सीन आती है, मेडिसिन आती है, फिर कोरोना हमें ज्यादा मुतासिर नहीं करता। न इन्फेक्शन केसेस बढ़ेंगे, न अमवात बढ़ेंगे, और न गवर्नमेंट पे प्रेशर बढ़ेगा, और न आपको परेशानी का सामना होगा। आखिर में एक दफा फिर मैं यही गुजारिश कर रहा हूं आवाम से कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट को ये एक खदशा था कि हमारी जो वेंटिलेटर्स हैं वो नाकाफी हैं। अगर खुदा न ख्वास्ता कोई बड़ी स्पाइक आती है कोरोना की, हंगामी सूरत-ए-हाल से निमटने की अगर कोई ऐसा माहौल आता है, तो फिर वेंटिलेटर्स की कमी की वजह से हमें मुश्किलात का सामना हो सकता था। और पास में आपके हेल्थ डिपार्टमेंट में, पास गवर्नमेंट्स में जो बैड गवर्नेंस और गैर जिम्मेदारी का एक माहौल रहा है, आपके हेल्थ डिपार्टमेंट में काम नहीं हुआ। इस हुकूमत ने जाके हेल्थ डिपार्टमेंट को इतना जरूर पांव पे खड़ा किया है कि आज इतनी बड़ी वबा के साथ भी हम जो है अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बेहतरीन अंदाज में, मुतमईन अंदाज में निबरत आजमा है। वेंटिलेटर्स हमने कुछ बढ़ा लिए, मजीद 75 वेंटिलेटर्स बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने ऑर्डर प्लेस किए हैं। 145 वेंटिलेटर एनडीएमए से हमने गुजारिश की है और उन्होंने कमिटमेंट की है जो फराम करेंगे। 2 मजीद मोबाइल लैब्स, एक चमन, एक नसीराबाद के लिए हमने गुजारिश की एनडीएमए को, एक ऑलरेडी तफ्तान में मौजूद है। कल से शेख ज़ायद हॉस्पिटल का लेबॉर्ट्री वो भी फंक्शनल हो गया है, कल टेस्ट का कंडक्ट करने का वहां पे आगाज हो चुका है। बीएमसी में ऑलरेडी चंद रोज कबल वहां पे भी एक लेबॉर्ट्री स्टैब्लिश हो गई थी। आज की तारीख में बलूचिस्तान में 3 लेबॉर्ट्रीज कोयटा में, एक मोबाइल लैब वो पार्क है तफ्तान में। मजमूई तौर पे इस वक्त हमारी कैपेसिटी जो 80 टेस्ट पर डे से हमने शुरू की थी, अल्हम्दुलिल्लाह 1200 प्लस तक हम पहुंच चुके हैं। मजीद 4 डिवीजन हेडक्वार्टर्स में लेबॉर्ट्री स्टैब्लिश करने हम जा रहे हैं। बलूचिस्तान गवर्नमेंट का टारगेट है कि कम अज कम 5000 टेस्ट पर डे कंडक्ट करने की कैपेसिटी हमने बिल्ड करना है। पीसीआर मशीनें भी हमें कुछ एनडीएमए ने फराम की, हम शुक्रगुजार हैं। कुछ बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने प्रोक्योर की है, उसमें भी ज्यादा इशू नहीं, ज्यादा इशू एचआर का आ रहा है, टेक्निकल जो स्टाफ है उसका आ रहा है। एचआर का मसला जो ही वक्तन फवक्तन होगा, हम लेबॉर्ट्रीज इंशाल्लाह उसमें इजाफा करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया जी। इसमें पुलिस के किरदार के हवाले से भी बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, और वीडियो में भी देखा जा सकता है कि पुलिस की जानिब से गफलत बरती गई, बल्कि वहाँ पे जो लोग थे मुलजमान थे उनको वहाँ से भगाने की जो है कोशिश की गई। इस सारे सूरत-ए-हाल में अब तक क्या कार्रवाई हुई और मज़ीद क्या होने जा रहे हैं, इस हवाले से देखिए, बड़ा अफसोसनाक वाक़या कल जो है ये पेश आया है, और अपनी नौइयत का जहाँ तक मुझे याद पड़ता है ये पहला वाक़या है। इस तरह कभी नहीं हुआ। हमारे बलूचिस्तान के कल्चर में टॉलरेंस, बर्दाश्त, रवादारी, भाईबंदी, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत और रख रखाव, ये हमारा एक कल्चर, एक माहौल रहा है। अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन इसमें जो एक नौजवान शहीद हुए, अल्लाह उनको मग़फ़रत फरमाए। 2 ज़ख्मी हैं। फौरी तौर पे बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने रात ही को सीएम साहब ने डायरेक्शन जारी की थी, रिपोर्ट तलब की है, और जो वहां पर कैमरे लगे हुए हैं, फुटेजेस की मदद से अब तक 11 जो मुश्तफा अफराद है मुबैना तौर पे वो अरेस्ट किए जा चुके हैं, इंक्वायरी की जा रही है।
लेकिन मैं एक बात आपको मेक श्योर करता हूं, यकीन के साथ कहता हूं, गारंटी के साथ, कि जो भी इसमें मुलव्विस होंगे वो बच नहीं पाएंगे। उन्हें बहर सूरत बहरहाल इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। जो मुलव्विस हैं उनके खिलाफ FIR भी लॉन्च होंगे और उन्हें अरेस्ट किया जाएगा। इससे कबल 2 दिन कबल भी एक और नौजवान जबरान खान, उसे भी खंजर के वार करके शहीद किया गया था। CM बलूचिस्तान जाम कमाल साहब ने फौरी तौर पे उसका नोटिस लिया, रिपोर्ट तलब की, और जो उसमें कातिल हैं, मुबैना कातिल, उसके अगेंस्ट जो है FIR जो है वो रजिस्टर हो चुका है और पुलिस जो है रेड कर रहे हैं, उनको अरेस्ट करने की भरपूर कोशिश कर रही। उस केस में भी मैं आपको मेक श्योर करता हूं कि कोई भी उसमें जो मुलव्विस होगा उसको इंसाफ के कटहरे तक हम पहुंचाएंगे। मौजूदा बलूचिस्तान गवर्नमेंट में कोई एक शख्स जो इस तरह के जुल्म बर्बरियत में मुलव्विस रहा है उसके खिलाफ FIR भी किया गया है और अल्टीमेटली उनको अरेस्ट करके इंसाफ के कटहरे तक लाया गया है और ये उनको भी लाया जाएगा। लियाकत साहब, कुछ अरसे से हालात थोड़े खराबी की तरफ जा रहे हैं। केज आवारान, फिर गैब का वाक़या, कल मसरूफ स्प्रिंजी का वाक़या, और इंडिया बर्मदा कह रहे मीडिया में, तो इसी के स्पोक्समैन आपकी क्या बात? देखिए, आपके सामने जैसे आपने खुद कहा कि भारत जो है, भारत के यहाँ पर अज़ाइम हैं, आज के नहीं ये पुराने उसके अज़ाइम हैं, और अफगानिस्तान में बैठ के रॉ और NDS वो वहाँ पे ज़ाहिर ईरान ने उनको ट्रेन किया है और यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं। और अक्सर जो दहशतगर्दी के वाक़यात सामने आए हैं, उनके पाँव के नकूश जब ट्रेस किए गए हैं, वो या इंडिया की तरफ जाते रहे या अफगानिस्तान की तरफ। मौजूदा जो अफगानिस्तान की सूरत हाल है, मैं उसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ कि वहाँ पर रॉ ऑपरेट कर रही है। और आपने खुद कहा कि जो भारतीय वहाँ पर मेजर है या उनके जो मीडिया शोज में जो लोग आते हैं वो बरबला कह रहे हैं, और हम भी बरबला कहते हैं कि पाकिस्तान, हमारी जो अफवाज पाकिस्तान की जो सलाहियत है वो 27 फ़रवरी को जो है वो इंडिया ने वो आजमा के देख लिया है। हमारी कैपेसिटी है, हमारे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, हमारी जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है, हमारे जो इदारे हैं, वो इंडिया के हर एक अज़ाइम को हमेशा उसको नाकाम बनाते रहे। और इंडिया ने जब जब भी यहाँ पे साजिश की उसको मुंह का खाना पड़ा। और बलूचिस्तान के हवाले से ख़ुसूसन 14 अगस्त को जो कश्मीरी भाइयों के साथ जो यकजहती के लिए जो कोयटा में जलसा मुनक्किद हुआ था, हम आप सब जानते हैं कि कोयटा के चंद एक तारीखी बड़े जो इज्तिमाआत हैं ये उनमें से एक था। और उसी दिन बलूचिस्तान के अवाम ने मोदी के मुंह पे एक जोरदार तमांचा रसद करके उसे बलूचिस्तान के अवाम का पैगाम सुना दिया था। और आज भी मोदी के कानों में उस तमांचे की जो आवाज़ है, जो सदाए बाज़गश्त है, वो गूंज रही है और जो उसे बेचैन रखता है, जो उसे परेशान रखता है, और इसीलिए वो साजिशें करता रहता है। 6 अरब रुपए अब तक कोरोना बजट के लिए रिलीज किए जा चुके हैं, जिनमें इक्विपमेंट की खरीदारी, इंस्ट्रूमेंट्स की खरीदारी, मेडिसिन की जो प्रोक्योरमेंट है, साथ ही जो हमने राशन प्रोवाइड किया, और जो नौजवानों को इंटरेस्ट फ्री लोन हम फराम कर रहे हैं, ओवरऑल ये अब तक 6 बिलियन रुपीस के लिए रिलीज हो चुके हैं। इससे कबल हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए पिछले बजट में 34 अरब रुपए हमने रखे थे, जो प्रीवियस बजट से 13% ज़ायद रकम थी। इसका साफ मतलब यह है कि पिछले दफ़ा भी हमने फोकस रखा था हेल्थ, एजुकेशन और डेवलपमेंट सेक्टर को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, और एक और नई जो जिद्दत लाई थी बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने, वो सोशल सिक्योरिटी के लिए 7 अरब से ज़ायद हमने रखे थे। यानी कि कोई गरीब तरीन पेशेंट जो 100 रुपया फीस भी अदा नहीं कर सकता एक सवीर बीमारी की शक्ल में, उनके लिए 1 लाख से 1 करोड़ रुपए तक बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने उनके इलाज मुआलजे के लिए हमने फराम किए हैं बलूचिस्तान अवामी एंडोमेंट फंड के तहत, जिसके तहत 662 गरीब पेशेंट्स जो है वो मुस्तफीज हो चुके हैं, और मजीद इंशाल्लाह उसको भी बढ़ाएंगे। नेक्स्ट आपने पूछा मुश्किलात हैं, BRA का हमारा जो एक जरिया है, 15 अरब रुपए हमारा टारगेट था, गो कि पिछले दफा सिर्फ 5 अरब रुपए हार्डली कलेक्ट हुए थे। अपने टारगेट की तरफ हम बड़े तेजी से जा रहे थे और उम्मीद ये था कि 100% हम अचीव करेंगे ये टारगेट। लेकिन
कोरोना की बदौलत जो है बहुत सारे सेक्टर्स को हमने टैक्सेशन में, BRA के टैक्सेशन में एग्जेम्पशन दी, जिसकी वजह से अब तक 2.5 अरब रुपए हमें कम टैक्स हम कलेक्ट कर सके हैं, उस पर भी असर पड़ा है। ओवरऑल फेडरल गवर्नमेंट जाहिर है जो उन्होंने रिसीट हासिल किए हैं उस पर भी असर पड़ा है, लेकिन NFC में बलूचिस्तान को इंशाल्लाह कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि एक गारंटी मौजूद है NFC में खसूसन बलूचिस्तान के लिए कि जो भी साल के अवाइल में जो टारगेटेड ओवरऑल रेवेन्यू जनरेशन या कलेक्शन का जो टारगेट है जो तय होता है, उसी के मुताबिक भले कम पैसे कलेक्ट हों या ज्यादा हों, लेकिन बलूचिस्तान का जो हिस्सा है वो जो है प्रोटेक्टेड है, उसको कवर हासिल है, तो उसमें हमें इंशाल्लाह नुकसान नहीं होगा। हमारे अपने टैक्स कम हो गए हैं, और इसके अलावा जो हमारा प्रायोरिटी रहेगा अगेन इस दफ़ा वो हेल्थ डिपार्टमेंट ही रहेगा, और उसके बाद एजुकेशन है और दीगर सेक्टर्स। सेंट्रल हुकूमत की जानिब से स्कूल की फीसों को माफ़ करने या कम करने के हवाले से क्या माफ़ करने? स्कूल की फीसें जो कम करने, बलूचिस्तान में 80% तक किया गया, लेकिन वालिदैन के लिए ज़ाहिर मुश्किलात का सबब है। इस हवाले से कोई इक़दाम करने के हवाले से कुछ सोचते हैं? हमने पहले भी इक़दाम किए हैं, न सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स के हवाले से बल्कि मार्केट में भी है। हमने ये तंबीह की थी और एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि कोई जो मालिक है किसी शॉप का लॉकडाउन के दौरान अपने टेनेंट को वो किराया न देने की बुनियाद पे न उसको वो तंग कर सकता है, न उसको फारिग कर सकता है। इसीलिए इसी तरह प्राइवेट स्कूल के हवाले से भी है और उसको हम मेक श्योर कर रहे हैं। लेकिन प्राइवेट स्कूल के जो मालिकान हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि साल साल इन्हीं वालिदैन ने अपने खून पसीने की कमाई आपको फीसों के मद में वो देते रहें और आपका कारोबार चलता रहे। और प्राइवेट स्कूल्स में जो टीचर्स को वो तनख्वाह देते हैं वो ना होने के बराबर है। जो स्कूल्स जो हाउसेज जो मकानात रेंट पे लेके स्कूल में उन्होंने कन्वर्ट किया, उसका भी कोई स्टैंडर्ड नहीं है। उसके बावजूद भी लोग अपने बच्चों को आपके पास तालीम और तरबियत के लिए भिजवाते रहे। अब अगर एक वबा है, लॉकडाउन की कैफियत है और वालिदैन को, पेरेंट्स को आप तंग कर रहे हैं, ये गैर मुनासिब है। इस पर हम तंबीह करते हैं तमाम प्राइवेट स्कूल के मालिकान को कि वो इखलाकियात का, वैल्यूज, कल्चर और इंसानियत का जो एक नाता है, रिश्ता है, जो वैल्यूज है, उसको आप जाने न दें, मोहतात रहें, वरना गवर्नमेंट जो है सख्त फैसले कर सकती है। और मैं उनको ये भी बताना चाहता हूं कि जब शॉप बंद है, जब लॉकडाउन में जो शॉप्स बंद थे, क्या शॉपकीपर्स ने पब्लिक से ये मुतालबा किया कि आप मेरे पहले कस्टमर थे, पहले आप आकर सौदा खरीदते थे और पैसे देते थे, अब मार्केट बंद है, आप नहीं आ रहे, सौदा भी नहीं खरीद रहे, लेकिन फिर भी आप पैसे अदा करें? क्या ऐसा हुआ है? जब दुकान बंद है, कुछ खरीदारी नहीं हो रही है, तो फिर किसी चीज का पैसा अदा नहीं किया जाएगा। नहीं, इस पर मैंने कहा कि 15 जुलाई तक स्कूल बंद रहेंगे। वैसे भी जुलाई में स्कूलों में जो है गर्मियों के तातीलात होंगे, 15 जुलाई तक स्कूल बंद रहेंगे। बाकी भी बहुत सारे तंजीमों ने इस तरह के धमकियां दी, न सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि पूरे मुल्क में ताजिर तंजीमों ने भी, सब ने कि हम मार्केट खोलेंगे, लेकिन नहीं खोल सके। उसी वक्त मार्केट खुले जब गवर्नमेंट ने फैसले किए, और आज भी जो गवर्नमेंट फैसला जब करेगा उसी वक्त स्कूल खुलेंगे। उससे एक दिन कबल भी कोई स्कूल नहीं खुल सकता। हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद किया, आज तक बंद है। जिन्होंने खसूसन ईद के अय्याम में अपने तौर पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने की कोशिश की, उन सबको हमने अरेस्ट किया, सबको हमने चालान किया। और इसी तरह कोई स्कूल खोलने की अपने तौर पे जिसारत करेगा तो इंशाल्लाह सीधा वो जेल जाएगा। बहुत शुक्रिया।